Hi Aparna. हेलो श्रुति जी। First of all, congratulations on completing Soul Surgery System Healing Program. थैंक यू। So Aparna, please introduce yourself, who you are, what you do, and you're from which place. माय नेम इज अपर्णा। आई एम अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट एंड आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आई एम लिविंग हियर फॉर पास्ट 20 प्लस, इट्स एक्चुअली 25 years नाउ। और मेरा अपना खुद का छोटा बिजनेस है। Mm-hmm. और मैं डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ये सारे काम करती हूँ। Right, great. Okay थैंक अपर्णा, यू। तो ये बताएं कि उस वक्त लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी सोल सर्जरी सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले, जिसके लिए आप सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे। आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी थी और क्या चल रहा था लाइफ में उस वक्त? प्लीज जी जी, इलैबोरेट योर प्रॉब्लम। श्योर। I came to the States about 25 years ago as following my husband. We had Mm-hmm. an arranged marriage, Mm-hmm. and 20 years after that marriage, I realized it was extremely incompatible, Mm-hmm. and I identified that it was actually a very abusive relationship. It took a long time for me to even identify that it was abusive. Mm-hmm. So when that relationship ended, that was about almost 4 years ago. Mm-hmm. Uh, I was at the bottom of my emotional health. Health Mm-hmm. problems बहुत थी. Mm-hmm. I was extremely low. Mm-hmm. Uh, couldn't understand what had gone wrong. Mm-hmm. क्या मैंने किया गलत जिसकी वजह से मेरी शादी टूटी. Mm-hmm. पूरी कोशिश करने के बावजूद भी it Mm-hmm. just broke. My Mm-hmm. husband of 20 years had simply just walked away, and I was looking for solutions to get myself back together. Mm-hmm. At the time, my finances were low. Mm-hmm. I absolutely, all I had was relying on myself on savings. Mm-hmm. काम बिल्कुल भी नहीं थे मेरे पास. Mm-hmm. और उस वक्त फिर मैंने अलग अलग थेरेपी करने का सोचा बिकॉज आई रियलाइज आई नीडेड सम हेल्प, सम प्रोफेशनल हेल्प. Mm-hmm. I was in therapy system when I realized that what I was facing was something called narcissistic abuse. I had हाँ. never heard this term before. So I Right. did multiple therapies. Mm. But despite of doing all of those, Mm. there was something which was not getting released out of me. The sadness was so deep. The Mm. emotional fatigue was so intense. Mm-hmm. I mean, those systems helped, those modalities, whatever I was doing, they helped, Mm-hmm. but not to the extent that I was looking for. I couldn't find myself back. And that's when, out of the blue, out of nowhere, I Mm. came across soul surgery system. And I was also praying a lot. And I'm a big believer that You were if you praying a lot. do I think this anything, is very common. Like जो भी सोल yeah. सर्जरी सिस्टम हीलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, वो मुझे एक चीज सभी बोलते हैं कि वो प्रे कर रहे थे कि उन्हें कुछ अच्छा हीलिंग प्रोग्राम मिल जाए या कुछ थेरेपीज मिल हाँ, जाए, एंड देन ऑल हाँ, ऑफ अ सडन दिस पॉपअप्स. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. हम्म. मतलब आई वाज प्रेइंग, और बहुत सिंपल थी कि डियर यूनिवर्स प्लीज गिव मी द सॉल्यूशन दैट आई एम लुकिंग फॉर हम्म. समहाउ. और उस दिन मुझे मुझे याद है, उस दिन सुबह आई जस्ट, आई डोंट इवन नो हाउ आई केम अक्रॉस योर YouTube video, and then there was a little link. I clicked on it and we connected, and it just started. It was so quick, it was so smooth, it was as हम्म. if it was meant to be, you हम्म. know. It was an answer to whatever I was looking for, and that's how I joined your course, and it was wonderful. हम्म. So Yeah, thank you. आपने पहले ऑलरेडी बहुत कुछ कर रखा था, जहाँ तक मुझे याद है कि आई थिंक एनएलपी, देन सेशंस फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट. तो जब आपके सामने ऑप्शन था सोल सर्जरी सिस्टम का, तो इसमें आपको क्या यूनिक लगा कि आपने डिसीजन लिया कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए? लाइक व्हाट वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव एस्पेक्ट फॉर यू? uh, जो मेरा पहले प्रोग्राम्स थे, they were almost like talk therapies, number one. हम्म. Number two, and most of these therapists, I realized they did not understand हम्म. what NPD is. हम्म. And they were, in fact, came to me gaslighting and telling me कि ऐसा कुछ नहीं होता. हम्म. They didn't understand exactly what the problem was. हम्म. They हम्म. couldn't, therefore, हम्म. target that sadness which I was feeling. हम्म.
So that was the main issue, and because there was a lack of empathy एंड हाउ even इट on their फील्स कि आप किसी के पास थेरेपी के लिए जा रहे हो और थेरेपिस्ट आपको ही ब्लेम करना इनफैक्ट शुरू कर दे हाँ कि हाँ इट इज तो योर मिस्टेक, इट्स नॉट अ बिग थिंग। कैसा लगता है हाँ किसी को, मतलब उस तो सिचुएशन में? बहुत मतलब मैं कितनी समझाने की कोशिश करूँ तो वो समझ नहीं पा रहे थे मेरी बात, हम्म मेरी प्रॉब्लम को, मेरी हम्म बात को। हम्म और हो क्या रहा था कि मुझे हम्म जो मैं प्रोडक्टिविटी, आई वाज लुकिंग फॉर प्रोडक्टिविटी बिकॉज आई नीडेड टू गेट बैक टू वर्क इमीडिएटली, हम्म बट आई couldn't वर्क एंड आई रियलाइज दैट देयर वाज सम स्टकनेस देयर। तो हम्म जब मैंने आपसे बात की, देयर वाज दिस एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर एंटायर प्रोग्राम हम्म which was missing in the approach of the हम्म previous professionals that I was seeing. And I हम्म had seen I had seen one, two, three of them. हम्म Uh, I was also doing some workshops online. I हम्म was reading a lot of books, हम्म and I was experiencing the symptoms of CPTSD. हम्म So here, unfortunately, where I live, there are हम्म not many people who understand CPTSD. हम्म They don't understand the symptoms of it. They don't know how to treat it. हम्म And I thought spirituality would help me because I'm myself a very spiritual person. So that element which I saw in हम्म your system हम्म was the most attractive part for me. हम्म Because if you remember, you and I, we had discussed, and I was thinking, ये शायद कोई past karma होगा, हम्म because उसी तरह से मैंने हम्म 20 साल तक मेरी शादी को खींचा था हम्म कि शायद पास्ट कर्मा है, शायद कुछ है, इसीलिए इस जन्म में मुझे हम्म भुगतना पड़ रहा है, all of that, because you try to justify the situation that you're in always, राइट, because you कि want to मैंने कुछ heal, you पाप want करा to, होगा, हाँ, मेरे शादी को मेरे हम कुछ बुरे मतलब we want कर्मास to होंगे carry इस it वजह से। forward. हाँ, तो आपका जो पीएलआर का सेशंस भी थे, यू सेड यू हैव सम 4 or 5, 6 पीएलआर्स, हाँ। सो दैट वाज अगेन अनदर पॉइंट व्हिच आई थॉट हो सकता है ये कुछ पिछले जन्म का हो, और मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होगा, तो हम्म ये मुझे सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये हम्म सोचकर मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया। राइट। और आपको कैसा लगा कि लाइक आई एम लिटिल बिट माई अप्रोच एज अ पीएलआर थेरेपिस्ट डिफरेंट दैन द अदर थेरेपिस्ट, जहाँ मैं किसी को ये नहीं फील कराती कि यू आर अ गिल्टी पर्सन, मतलब आपने करा ऐसा इस वजह से हुआ। इनफैक्ट अगर किसी के अंदर गिल्ट होता है तो आई ट्राई टू रिलीज दैट गिल्ट कि नहीं, इसमें इट्स नॉट हम्म। योर मिस्टेक। या फिर कभी अगर बाई चांस गलती से किसी से कुछ हो भी गया तो नाउ इन दिस बर्थ यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर वेरी गुड पर्सन, तो अभी आपको उस गिल्ट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। तो ये एस्पेक्ट से आपको कितना बेनिफिट हुआ इस चीज से? जब मेरी शादी टूटी तो मैं पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लग रहा था कि मेरी है। हम्म मुझे हमेशा लगता था शायद मैं कुछ और थोड़ा सा करती, हम्म शायद मैं और थोड़ा सा कर देती, हम्म हम्म बट देन देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई रियलाइज्ड देयर इज नथिंग एल्स आई कुड हैव डन। हाँ। हाउ मच एवर आई गेव, इट हम्म वाज नेवर इनफ। हाउ राइट। मच एवर आई डिड, द बिकॉज द रीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज टॉक्सिक पीपल आर लाइक एक ऐसे पॉट होते हैं जिसमें इतने होल्स होते हैं, आप उसमें कितना हाँ भी पोर कर दो, हाँ है ना, हाँ पोर करते हाँ जाओ, वो हाँ बस निकलता जाएगा, कभी दे आर नेवर एवर सेटिस्फाइड, और वो और तो बस करते रहो, ये रहता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम्म ये मतलब इस बात को रियलाइज करने में और इस गिल्ट को हम्म छोड़ने में मुझे बहुत हम्म समय लगा। हम्म जब आपके आपके साथ मैं मतलब जुड़ चुकी थी और हमारा हम्म प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था, तब भी आई हैड दिस फीलिंग ऑफ गिल्ट इनसाइड ऑफ मी। हम्म हम्म सो व्हेन वी स्टार्टेड विथ योर प्रोग्राम, द फर्स्ट सेशन आई रिमेम्बर वाज EFT, एंड देन देयर वाज हम्म affirmations and all of that. हम्म The first time I realized, हम्म and the realization sunk in, it हम्म is not me. मतलब हम्म मुझे पता था कि वो मैं नहीं हूँ, but then हम्म understanding is different and complete acknowledgement and acceptance is completely different. तो ये दो अलग चीजें हैं, मतलब मुझे पता है लेकिन acceptance पूरी तरह से नहीं था मेरा। हाँ। तो आपने जो सिस्टम मतलब आपके जो है, पहले सेशंस में आप जो EFT करवाती है और उससे जो टैपिंग का वो जो सब मैंने किया, हम्म अफर्मेशंस किए, हम्म उसके बाद धीरे धीरे वो जो इमोशंस रिलीज होती गई, उसके बाद फिर गिल्ट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई रिलीज्ड, हम्म and complete acceptance of myself, complete self love of myself was the हम्म first step towards acceptance हम्म and releasing of the guilt, which I was not able to do previously हम्म in the हम्म previous programs that I had joined. They completely failed to understand that हम्म I needed to forgive myself first before I could even forgive or even look at
the हम्म situation that was going on around me. हम्म So it had to begin with me, with my हाँ inner healing. हम्म So I think that was the crucial step, for राइट me. राइट। Yeah. आपकी इस बात से मुझे एक और मेरी क्लाइंट थी रिंकी, उसका मुझे एक किस्सा याद आ गया, तो मैं थोड़ा सा उसके हम्म बारे में बताना चाहूंगी हम्म आपको भी जी और जी जी व्यूअर्स बताइए। को भी, कि कितना सोच समझ के आपको थेरेपिस्ट को ज्वाइन करना चाहिए, है ना, और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हाँ। यूजुअली क्या होता है, जैसे किसी ने किसी के अंडर कोर्स किया, है ना, तो जिस जिस मेंटोर के साथ उन्होंने वो कोर्स किया तो उसके साथ अपनी पिक्चर्स वगैरह वो लगाते हैं, मैंने इस मेंटोर से सीखा, मैंने इस, जो फेमस लोग हैं उनके साथ अपनी पिक्चर्स लगाते हैं। तो एक लड़की थी रिंकी, तो उसे कंफ्यूजन था, वो जब व्हेन शी वांटेड टू हील हरसेल्फ, तो एक तो उसको मेरा लग रहा था कि दो ऑप्शन थे, या तो मैं मैम के अंडर करूं, और उसके पास हम्म एक और ऑप्शन था, एक और थेरेपिस्ट थी। जी। अब उन वो जो थेरेपिस्ट की जो वेबसाइट थी ना बड़ी अट्रैक्टिव थी, क्योंकि उसपे ना हम्म बड़े बड़े फेमस लोगों के साथ उसकी पिक्चर्स थी। ठीक है, अच्छा। ये अवार्ड वो अवार्ड, दुनिया भर के हम्म अवार्ड्स। और मुझे लगता है टेस्टिमोनियल्स तो कुछ ऐसे खास नहीं थे, शायद एक आध दो कुछ होंगे, वो भी बस इट्स रिगार्डिंग लाइक हाउ शी लुक्स, अबाउट हर अपीयरेंस, रादर देन लाइक कि क्या चेंजेस लेकर आए। ठीक है, बट इट वाज हम्म। वेरी अट्रैक्टिव कि भाई वो देख के एकदम से उसे लग रहा था भाई ये तो बहुत बड़े, मतलब कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, इतने बड़े बड़े लोगों के संग पिक्चर्स है इसकी, इतने सारे अवार्ड्स कुछ है। तो उसने मेरा ऑप्शन ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर आप मेरे किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे जाएंगे, आपको मेरे किस एक भी मेंटोर की, किसी भी बड़े इंसान की पिक्चर नहीं दिखाई देगी। अगर आपको कुछ हम्म मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ जी। फीडबैक्स मिलेंगे, नथिंग एल्स, है ना। हाँ आई मुझे, थिंक हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली आपका मतलब, या मुझे नथिंग सिर्फ एल्स, बात आपके साथ याद है। हाँ राइट। राइट, ओनली फीडबैक्स और सम आर्टिकल्स रिटन बाय मी। ना ही कोई अवार्ड है, ना ही कोई बिग मेंटोर्स की पिक्चर्स है। तो फाइनली शी फाउंड हर वेरी अट्रैक्टिव, और वो हम्म वहां चली गई हील होने के लिए। हम्म अब वहां पे जब वहां गई तो उसका ट्रॉमा हील होने की बजाय एज यूजुअल बिल्कुल आपके केस की तरह वही हुआ। उस थेरेपिस्ट ने उसको इतना ब्लेम करा, लाइक कि तुम्हारी जो लाइफ में प्रॉब्लम है ना, इट्स बिकॉज ऑफ यू, मतलब वॉट एवर इट इज, उसने जो कुछ भी कहा, हील होने की बजाय वो और डिप्रेस हो गई। एंड देन लेटर ऑन फिर वो मेरे पास आई, तब उसे कुछ क्लिक हुआ होगा, फिर वो मेरे पास हम्म आई। और मुझे आज भी उसका हम्म कंसल्टेशन याद है, 1 आवर का जो था, वो हार्डली जी। 1 सेकेंड के लिए भी चुप रही हो, वो रोती ही जा रही थी, रो रो के बोल रही थी, उसकी एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि मुझे बस लगा कि अब अगले नेक्स्ट 2 मिनट्स में मैं भी रोना शुरू कर दूंगी इसके साथ। ओह माय इतनी गुडनेस। हैवी हाँ। इंटेंस एनर्जी थी। और खैर उसने ज्वाइन किया, लेकिन उसका ये जो रोना था हम्म ना, जब भी उससे बात करो वो बिना रोए बात ही नहीं करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना दुख उसके अंदर भरा होगा। और विद हाँ। इन 90 डेज, जो हमारा हीलिंग प्रोग्राम है ना, तो वो पूरा कंप्लीटली हील हुई। और देन शी सेंड मी वन वीडियो, और उसमें हम्म उसने बोला मैम मैं 1 साल के बाद अब डांस कर रही हूँ। तो मेरे ऑफिस की पार्टी थी, तो हम सब लोग हम्म पूरे ऑफिस के सब कुलीग्स वगैरह सब साथ में गए थे, और ये मेरा डांस है, और आप इसे पब्लिश करिए। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो फेसबुक पेज जो है मेरा, वहाँ पे रिंकी करके सर्च करना, उसका वीडियो है। हम्म, और इतना जी जी मस्त उसने बिल्कुल। डांस किया है उसमें, मतलब वो इतनी खुश है, हैप्पी है, बोले मैम मतलब 1 ईयर के बाद आज मैं खुश हुई हूँ। तो हम्म ये इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो चमक धमक होती है ना, हाई फाई चीजें, है ना, जरूरी नहीं है कि वो रियल भी हो। दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे मुझे लगता है कि मेरी से ये गलती हुई थी हम्म कि क्या होता है ना कि हम जब डॉक्टर्स, बिकॉज हम्म दिस इज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर डॉक्टर्स राइट, हम्म हम हम्म, जब उनके पास जाते हैं तो अजम्पशन होता है कि उनको ज्यादा पता है हाँ और वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है हाँ, और वो जो करेंगे सही ही करेंगे। राइट। you हम्म know so हम्म when I went to the first person, all there was talk therapy. All that person used to do was empathize with me. मैंने हम्म कहा मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे that is really so bad, and then I say something and say that is really so bad. हम्म, It was just empathizing, there was no solution out of it. हाँ I एग्जैक्टली। had to ask him, and I realized I'm not going anywhere. हम्म Second person, similar story. Third person, similar story. And then finally I turned to books.
हम्म आई टर्न्ड टू अंडरस्टैंडिंग कि मुझे हो क्या रहा है। हम्म हम्म हो क्या रहा था मतलब फर्स्ट स्टकनेस तो था इमोशंस का। हम्म आई कुडंट वर्क हम्म बिकॉज द पेन वॉज सो इंटेंस हम्म दैट आई हैड इनसाइड ऑफ मी, जो रिलीज नहीं हो रहा था। हम्म और उसको रिलीज करने के लिए जो मोडेलिटीज की जरूरत होती है वो उनके पास नहीं थी, हाँ अनफॉर्चुनेटली। राइट एंड दीज आर प्रोफेशनल्स। हाँ एंड इट इज ट्रू, मतलब मैं स्टडी ये भी देख रही थी कि यूएस में यहाँ पर भी बहुत हाँ कम लोग हैं हाँ जो एनपीडी को समझते हैं और हम्म उनके जो विक्टिम्स हैं हम्म सीपीटीएसडी के सिम्टम्स को हम्म ठीक से समझते भी हैं। हम्म बहुत कम लोग हैं। हम्म तो what you're telling me, I हम्म can completely understand कि हाँ मेरे साथ भी मतलब बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन थी। यस। और आजकल अवार्ड लेना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे पास खुद इतने सारे ऑफर्स आते हैं कि मैम यू पे दिस मच अमाउंट एंड वी विल गिव यू अवार्ड। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे ऐसा अवार्ड जो पे करके मिले। हाँ। ऐसा अवार्ड मुझे नहीं चाहिए। अवार्ड तो वो होता है जिसमें आप कुछ लाइक दो, मतलब अगर आप सच में अप्रिशिएट कर रहे हो किसी को। जी तो जी जी। जी आई जी बिलीव बिल्कुल। इन कम्प्लीटली कि अपनी मेहनत के बल पे इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। और अपना, आपके मेंटोर कितने भी ग्रेट हो, वो वो ग्रेट है ना, उनकी ग्रेटनेस है, हाँ लेकिन आप थोड़ी ना ग्रेट हो। आप उनके नाम पे काम लेना मुझे नहीं लगता कि ठीक बात है। अपने मेंटोर के नाम पर काम लेना मुझे नहीं लगता कि एक हाई स्टैंडर्ड है। एक हाई स्टैंडर्ड वो है जब जहां आप खुद रिजल्ट क्रिएट करो, लोगों को रिजल्ट क्रिएट करके दो, और वही चीज होनी चाहिए। तो कभी भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि इससे आपके पैसे भी वेस्ट होंगे अगर आपने इस तरह से करा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, है ना। तो किसी भी थेरेपिस्ट को अगर आपको सेलेक्ट करना है, प्लीज आप उसने जो भी काम किया है उसको आप स्टडी करिए। जो भी उसके फीडबैक्स हैं उनको स्टडी करिए, लोगों की लाइफ में क्या चेंज आया है उसको स्टडी करिए, एंड देन सेलेक्ट थेरेपिस्ट। हाँ, और उस थेरेपिस्ट से बात भी कीजिए। बात भी कीजिए। टॉक, हाँ, टॉक विद देम एंड सी इफ यू क्लिक, बिकॉज इफ यू डोंट क्लिक, इफ दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, मुझे आज भी याद है इट्स अपर्णा, नॉट गोइंग तुम्हारा टू वर्क। जो फ्री कंसल्टेशन जो सेशन किया था, हाँ तो हाँ उसमें यू आस्क्ड वेरी वेरी डीप क्वेश्चंस, वेरी वेरी डीप क्वेश्चंस। तो मुझे, एक तो मुझे, मैं खुद स्पिरिचुअलिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं जिनके अंदर डेप्थ होती है, जो गहराई में जा सकते हैं। तो आपने जी। जितने जो डीप क्वेश्चंस पूछे थे उसके उसके आंसर्स देने में मुझे बहुत बहुत मजा आया। और मुझे लगता है आपको भी शायद वही चीज क्लिक हुई, है ना, सोल सर्जन हाँ ज्वाइन बिल्कुल, करना। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, बिकॉज सी क्या प्रॉब्लम मेरी मेरे साथ ये भी थी कि बिकॉज आई कम फ्रॉम एन ईस्टर्न बैकग्राउंड, हम्म तो मेरा स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा भरोसा है। आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, मतलब रिचुअलिस्टिक नहीं हूँ ज्यादा, बट आई बिलीव हम्म इन स्पिरिचुअलिटी। हम्म यू नो, आई बिलीव इन हायर सेल्फ, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन हायर पावर। हम्म ये एलिमेंट जो है स्पिरिचुअलिटी का हम्म वेस्टर्न साइकोलॉजी में शायद कंप्लीटली मिसिंग है। मे बी आई एम मेकिंग अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, मुझे नहीं हाँ, पता, बट मेरा नॉट जो ओनली वेस्टर्न, एक्सपीरियंस इवन रहा इंडियन है। साइकोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी को हाँ ऐड करते ही नहीं है। हाँ और बिना एग्जैक्टली। स्पिरिचुअल तो अंडरस्टैंडिंग के जब, यू कैन नॉट हील इमोशनल हाँ, ट्रॉमा। तो जब मैं मतलब कर्मा की बात करती, या जब मैं ऐसी ऐसी चीजों को हम्म ऊपर, व्हेन आई ब्रिंग अप सच टॉपिक्स, हम्म the people I was speaking with, they हम्म couldn't relate to it at all. That हम्म was one thing. Secondly, coming from an Asian background हम्म and speaking with Western हम्म psychologists was again another difference, because they did not understand my Asian upbringing. हम्म They did not understand. If you, the first question I remember somebody asking me, हम्म if you knew that he is abusive, if हम्म you knew that they were abusive and हम्म they are taking advantage of you, why did you not leave earlier? यस। आई कुडंट एक्सप्लेन इट टू देम कि हम्म भाई मुझे संस्कार ही मेरे ऐसे हुए हैं कि हम परिवार को साथ कर पकड़ के चलते हैं, यस। हम टूट जाएंगे। मैं एज अ वुमन, आई एम ब्रॉट अप इन अ हाउस होल्ड बाय माई मॉम, बाय माई ग्रैंड मदर, हु टेल्स, नहीं बच्चा, हम परिवार को एक साथ लेके चलते हैं। यू नो, हम्म यू होल्ड द हैंड ऑफ योर हस्बैंड नो मैटर, हम्म नो मैटर वॉट। और मुझे अभी भी मतलब it makes me so emotional to just talk about this. हम्म They don't understand this problem. There is, हम्म maybe there is this lack of, हम्म I don't know. The हम्म other issue also was that once a person is in such a relationship for a very long time, there is something called as codependency. तो हम्म मेरे में codependency के भी symptoms थे जो उन्होंने identify नहीं किए, हाँ because if you're
for a very long time in a very abusive relationship, you develop codependency, which is another symptom of राइट। CPTS. हम्म। उसको रिजॉल्व करने के लिए हम्म। your program helped me a lot. हम्म। Because after that, then I could come out of, as I said earlier, I could understand what the problem was. I हम्म। could understand I don't need to feel guilty. I हम्म। understand that it was really abusive. हम्म। And I was justifying to myself कि नहीं, ये मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैंने और कुछ करना चाहिए था. हम्म। It was like lifting of the fog, you हम्म। know, हम्म। when we did EFT and all of that. हम्म। So, yeah. ये राइट। ये डिस्क्रेपेंसी है. तो मुझे लगता है कि आपका जो एज अ वुमन, आपका एशियन बैकग्राउंड, एज अ वुमन आपका स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट, ये दो चीजें भी बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट थी. राइट। और मैं एक चीज और भी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ। लोग बोलते हैं इस चीज का, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से जब कोई वुमेन बाहर निकल के आ रही है और लाइक मैरिज को 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, तो उनको ये रहता है कि जब ये प्रॉब्लम शुरू से डे वन से स्टार्ट हो गई थी या 1 ईयर से स्टार्ट हो गई थी, तो आपने तभी क्यों नहीं इस चीज को, इन लोगों को क्यों नहीं, तभी आप बाहर निकल के क्यों नहीं आए इस रिलेशनशिप से? लोग या पीपल समझते डोंट नहीं है। अंडरस्टैंड. तो नहीं उसका एक समझते. आंसर मैं आपको और दे रही हूँ। उसका एक आंसर है कि एक ट्रॉमा बॉन्ड होता है जो क्रिएट हो जाता है। जी. जी बिल्कुल. एंड व्हाट इज ट्रॉमा बॉन्ड, आपको समझना ही पड़ेगा कि पहले ये जो इतने लॉन्ग टर्म में कोई वुमेन इतना लंबा उस चीज को एक्सटेंड करती है, पहले तो उसका खुद का एम्पैथेटिक नेचर होता है, ठीक है, उसके अंदर बड़ा हम्म. कंपैशन होता है, और उसका एक बिलीफ सिस्टम होता है कि सब सब ठीक हो सकता है ना, अगर हाँ. मैं अच्छा करती जाऊंगी, मैं अच्छा करती हाँ. जाऊंगी, मैं सपोर्ट करती हाँ. चली जाऊंगी, जी. सपोर्ट इसी इसी होप में कि मैं सपोर्ट करती चली जाऊंगी, और जी. अ, दुनिया में चाहे कोई कितना भी बुरा हो, वो ठीक हो सकता है, वो बदल सकता है, वो चेंज हो हाँ. सकता है। हाँ. तो इसी हाँ. होप से वो 1 साल निकलता है, दूसरा साल निकलता है, तीसरा साल निकलता है, और ये चलता जाता है। इसके अलावा नार्सिसिस्टिक अब्यूज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसकी वजह से ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट होता है, और वो ये होता है, अब्यूज कांस्टेंट नहीं होता। लाइक अब्यूज करा, उसके बीच हाँ. में वो बड़ा अच्छा बिहेव करेंगे ताकि आप अब जी. तक जितना भी जी. अब्यूज जी. आपके साथ हुआ ना, एकदम आपका ब्रेन वॉश हो जाए, क्या हुआ, घोस्ट कर देंगे हाँ. आपको, है ना। या फिर हाँ. एक बड़ा अच्छा सा, आपको बड़ा अच्छा सा लव बॉम्बिंग करेंगे, एंड यू फील अरे नहीं, मैंने अब तक जो कुछ हुआ ना वो मेरी गलत फहमी थी, या मेरी गलतफहमी थी, एग्जैक्टली. है ना, हाँ, मेरी गलत ऐसा फहमी होता है. थी, है ना। और फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर अब्यूज स्टार्ट हो जाएगा, फिर बीच में एक लव बॉम्बिंग कर देंगे, फिर अब्यूज स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस। लाइक इंसान का जो हम्म. दिमाग होता है ना, वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जैक्टली ये पर्सन अच्छा है या बुरा है, जी. मैं गलत समझ रही हूँ, क्या ये क्या ये वाकई में बुरा है कि ये वाकई में अच्छा हम्म. है। और फिर बहुत सारी चीजें होती है, सोशल प्रेशर होता है, कल्चर होता है ना। तो इन चीजों की वजह से कोई वुमेन इस टॉक्सिक मैरिज में इतने टाइम तक रहती है। तो ये ये सारी बातें बाद में समझ में आई. ये बाद में समझ में आती And- है जब आप अपने आप को एजुकेट करते हो अबाउट जी. नार्सिसिज्म। जी. जब जी. जी आपको समझ बिल्कुल. में आता है, जब आप एजुकेट, जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है। हाँ, तो अपर्णा, आई रियली हाँ. वांटेड टू नो, आपके सर के ऊपर से पानी कब निकला जब आपने कहा भाई अब तो बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया, अब तो मुझे बाहर निकलना है इस मैरिज से? जैसे आपने कहा कि ये जो फेज होता है, हम्म। बहुत अच्छा फेज फिर बुरा फेज, बहुत अच्छा फेज बुरा फेज, हम्म। ये मेरे साथ नॉर्मल था. हम्म। और मुझे पता नहीं चला कि ये दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग विथ मी. हम्म। मतलब आई वाज पुश्ड टू परफॉर्म. हम्म। And I used to think how nice. I'm this lucky few women हम्म। whose husband is so supportive. कितने मुझे support करते हैं, मुझे perform करने के लिए push करते हैं. हम्म। But at the same time, if I did not perform, I was also punished badly. हम्म। You know, and it is not possible for a person to continuously keep performing. हम्म। और ये परफॉर्मेंस हर मतलब जिंदगी के हर फेज में होनी चाहिए. हम्म। घर में यू हैव टू बी परफेक्ट. हम्म। You have to be perfect emotionally. You have to be perfect with a family. You have to be perfect with him. You have to be perfect as a wife. हम्म। You have to be perfect as everything. हम्म। And if you are not perfect, then you are punished for it. And I was really brutally punished when I failed. हम्म। So I shouldn't be even using the word failed because हम्म। आप स्ट्रेच कितना कर सकते हो ना अपने आप को. हम्म। हम्म। तो और ये सिलसिला जो मेरा 20 साल तक चला, मुझे ये महसूस होने लगा कि there was a point when I was growing. हम्म। But he was not growing हम्म। emotionally, spiritually. I was growing, he was not growing. And he wanted me to stay where I was with him all the time.
हम्म Secondly, in my professional life, I was making progress. हम्म And there is this unknown or unwritten rule that you can be as good as until you're here. Okay. हम्म If you go हम्म beyond that, or if you even try to attempt to go beyond it, हम्म I will pull you down or you'll हम्म be punished brutally for it. हम्म तो ये कंटिन्यूअस कांस्टेंट क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा हुआ था मुझे 20 साल, हम्म मतलब इतना ज्यादा, और सिर्फ हम्म उन्हीं से नहीं, मतलब उनके फैमिली भी यहीं पे रहती है। हम्म तो इट वाज अफेक्टिंग माय इट हैड बिगन टू अफेक्ट माय हेल्थ। हम्म मेरी थायराइड लेवल्स वर थ्रू द रूफ, मेरा हम्म, कोलेस्ट्रॉल हाई था, हाँ। was lot of aches and pains in the body. I couldn't even function every day. And then this हम्म constant confusion में I used हम्म to think ये मेरा क्रिएट किया हुआ सब कुछ है, ये सचमुच मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा हम्म है। हम्म हम्म So there was lot of confusion. I हम्म couldn't perform well, or I was experiencing lot of memory loss. हम्म I couldn't remember things. हम्म And so I knew and realized something was seriously wrong with me. हम्म He pushed me to take therapy where हम्म he was not willing to do it himself. नाउ दिस इज द सेकंड लाइक वेरी I know. इंपॉर्टेंट एक फीचर होता है नार्सिसिस्ट का, कि जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में होते हो, आप थेरेपी लेते जाते हो, Exactly. और नार्सिसिस्ट को Exactly. कोई थेरेपी लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो कुछ नहीं। किसी को कुछ कुछ बोलने भी नहीं। नहीं चाहते, कि मतलब किसी को पता कुछ भी ना नहीं। चले कि भाई मुझे थेरेपी लेनी है ना, ना खुद लेंगे, लेकिन कुछ उनके नहीं। साथ जो रहते हैं, नार्सिसिस्ट के साथ जो लोग रहते हैं, वो थेरेपी पे थेरेपी लेते जाएंगे। और आई थिंक हाँ, मैंने वही, मतलब मैं हाँ, कंटिन्यूअसली, तो मतलब 20 साल में मुझे याद है, आई एम कॉन्स्टेंटली रीडिंग बुक्स, कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू अंडर, मैंने और ज्यादा क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली हो क्या रहा है क्या मेरे करूँ साथ। हाँ हाँ, क्या करूँ जिससे कि ये खुश हो, हाँ, क्या करूँ कि जिससे ये मुझे तंग ना करे, क्या करूँ कि जिससे ये मुझे डांटे नहीं, ये मुझे प्यार करें या पनिश प्यार से ना रहें। करे, हाँ, मुझे अब्यूज ना करे, मुझे गलत राइट। बातें ना करे, मैं क्या करूँ। और हम्म मुझे आई रियलाइज कि मैं और कुछ नहीं कर सकती। हम्म जो भी करना था मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। हम्म एज अ एज अ वाइफ, एज अ मदर, आई हम्म कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, माई हेल्थ इज गोइंग डाउन, हम्म emotionally I'm not feeling very nice. So हम्म there has to be some serious problem, and that's when I just got up and I said, you know what, I can't live like this. हम्म अगर मुझे जिंदा रहना है हम्म तो मुझे इस रिलेशनशिप को छोड़ना ही होगा। एग्जैक्टली या तो एग्जैक्टली। फिर आप बदलो, आप भी हाँ बदलने की कोशिश करो। हाँ। क्योंकि जब मैं उनके पास जाती और कहती कि मैं, वी नीड टू टॉक, हम्म तो बात घुमा फिरा के मेरे पर ही आ जाती। हाँ। यस। और जब नार्सिसिस्ट भी कभी भी हम, ठीक तरह से हाँ, जब भी कम्युनिकेट नहीं हम, कर हाँ, सकते। उनके लिए तो कोई कम्युनिकेशन यही डिस्कस, है कि सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं वो। और मैंने कहा कि नहीं ठीक है, आप जो भी कहे मैं बिल्कुल वही करूंगी, हम्म आप जो कह रहे हो वही करूंगी, हम्म प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल हम्म लाइफ में वही हम्म करूंगी। हम्म लेकिन ये अगर मैं कर रही हूँ हम्म तो आपने भी करना चाहिए। हम्म If you want commitment from me, you should also have similar kind of commitment from, हाँ because it's that's how a relationship works, right? हाँ And to एग्जैक्टली। have this discussion after 20 years of marriage is, I mean, हम्म it's ridiculous. हम्म But we used to have those discussions, और घुमा फिरा के it used to come, हम्म we didn't go anywhere. I mean, I हम्म don't know how to explain it, but we हम्म didn't go anywhere. I didn't go anywhere at all. हम्म And it was extremely tiring, हम्म emotionally fatigue इतना ज्यादा मुझे था। हम्म I said, I can't continue like this. हम्म I have to break it. मतलब एक ऐसा पॉइंट था कि मैंने कहा सोसाइटी को मारो गोली, फैमिली, नो बडी मैटर्स, आई नीड टू फर्स्ट मेक श्योर that I am alive and thriving. यस And the second यस। reason I also called it off was because my son was growing up. हाँ He was at that time around 16, 15, 16, और हम्म वो ऑब्जर्व कर रहा था पिताजी के बिहेवियर को, हाँ वो ऑब्जर्व कर रहा था मेरी इन लॉज के बिहेवियर को, हाँ और ग्रोइंग अप अ चाइल्ड ही वाज एब्जॉर्बिंग ऑल ऑफ दोज बैड बिहेवियर्स। हाँ तो मुझे ये भी था कि आई नीड टू कट दिस सर्कल, आई नीड टू हाँ कट दिस सर्कल ऑफ अब्यूज एंड स्टॉप इट राइट हियर, बिकॉज आई डोंट वांट माय सन टू बिकम अ रेप्लिका ऑफ माय हस्बैंड। एग्जैक्टली। एज अ मदर आई वुड फेल हिम। तो यस। तो ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत जरूरी थी, बिकॉज ऑनेस्टली आई वाज टेलिंग माई सेल्फ, नहीं बच्चा भी छोटा है तो आई शुड स्टे इन द मैरिज, बच्चा भी हम्म छोटा है, ही हाँ मदर एंड हाँ फादर। तो उसकी तरफ देखकर भी मैंने ये स्ट्रेच किया इतने साल। हाँ। एंड देन और व्हेन आई बल्कि रियलाइज वही कि उल्टा हो जाता है, बल्कि बच्चे के एग्जैक्टली, लिए वो बहुत गलत हो जाता है।
क्योंकि हाँ, वो भी वो सारी एग्जैक्टली। चीजें सीखना शुरू कर देता है, मैनिपुलेशन, क्योंकि वो सिखाते हैं उसको झूठ बोलना, हाँ, और मैनिपुलेट मतलब करना। हाँ एग्जैक्टली, और अगर मतलब अगर सिखाते भी फिर भी ही वाज वाचिंग इट, राइट? हाँ एंड ही वाज हैविंग दोस बिहेवियर्स, अ लिटिल बिट ऑफ इट glimpses I could see. When I saw that, I हाँ was like, Aparna, you will not only fail yourself, but you'll fail your child as well. तो यस अपने लिए ना सही, उसके लिए सही। हाँ You need to एग्जैक्टली मैं break आप the लोगों को बताना abusive चाहती bond. हूँ, एक इम्पैथेटिक जो वुमेन होती है ना, जब तक उसके साथ टॉर्चर हो रहा है वो किसी तरह से सहन करती जाती है। लेकिन एक जो फाइनल हम्म। पॉइंट होता है ना, वो मैरिज क्यों ब्रेक करती है, सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो बच्चे ही होते हैं, कि नहीं अब इफेक्ट बच्चों के ऊपर आ रहा है। अब तक मेरे ऊपर था, हाँ। पर अब हाँ। इसका इफेक्ट अब बच्चों के ऊपर आ रहा है। तो बच्चों के ऊपर तो बिल्कुल नहीं आने, कोई भी वुमेन हम्म। है, कोई भी मदर है ना, और स्पेशली जब उसके अंदर इतनी ज्यादा इम्पैथी है, तो वो जब दूसरों के लिए इतनी इम्पैथी है तो अपने बच्चे के लिए तो कितना होगा उसके मन में। हम्म। तो बच्चों के हम्म। ऊपर जहां बात आ जाती है कि नहीं, अभी मेरे ऊपर जब तक था, लेकिन अब बच्चों के ऊपर बात आ रही है, ये भी गलत सीखेंगे, इनके साथ भी ये होगा वहां पे। तो दो रीजन, एक तो बच्चे, दूसरा हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज, हाँ, मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज थे। अगर आप बहुत थे। मैं आप बोल रही हूँ, अगर आप इस तरह के मैरिज को ब्रेक नहीं करेंगे, है ना, तो ये जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं ना, ये आप ऐसे फिर ऐसे मरोगे। तो आप ऑब्वियसली, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना कि आप इतने सारे आपके जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आप उसकी वजह से आप अपना अ, आप शरीर छोड़ रहे हो, और वो भी इतनी बीमारियों के साथ, और वो भी तब जब आपने इतना कुछ किया किसी के लिए। तो जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, आई एग्री विद दिस कि, तो आपके लिए यही सबसे मेन मेजर दो पॉइंट्स है जो आपने कहा, इनफ इज इनफ, और मुझे अब निकलना है। Enough is enough, yeah, because there was nothing else I could have done. हम्म। I had done everything that I possibly could, and then the fatigue had set in where I realized कि मैं मर भी जाऊंगी ना, हम्म। तो भी शायद वो पलट के कहेंगे, अरे ये मर गई इतने जल्दी, हाँ, इतना आई भी नहीं नो। सहन कर सकी। बिकॉज नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के लिए बोला जाता है कि आपकी डेथ का भी वो अपने लिए बेनिफिट उठाएंगे, मतलब कहते हैं कि वो आपकी लाश के ऊपर से मुस्कुराते हुए चले जाएंगे, एंड दे विल नॉट फील एनीथिंग। you इतनी know बड़ी that बात was बोली जाती है। that was actually that the statement that I just made actually हम्म। comes from my in-laws, हम्म। because they used to say that all the time. I also meditate, I also do a lot of spiritual practices. हम्म। तो उनका बिलीफ ये था कि अरे तुम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हो ना, हम्म। अरे यू मेडिटेट राइट, हम्म। तुमको इतना भी सहन नहीं होता? So it was as if I'm going to use you as a punching bag. I want to punch you morning, evening. I हम्म। want to put you down. I want to insult you. I want to harm you, hurt you. हम्म। Then if you cry, हम्म। how come you're so weak? हम्म। And this was a pattern which was there in my marriage for a long time. And I used to, हम्म। it took a long time for me to even realize this. हम्म। So हाँ that एग्जैक्टली, was वो another वो लोग reason ये where, चाहते हैं कि वो अब्यूज पे अब्यूज करे जाएं, और जितनी हाँ, स्पिरिचुअल करते प्रैक्टिस जाए आप और आप करते सही हैं, करते आप जाए। वो प्रैक्टिस करके उन्होंने जो अब्यूज किया है उससे अपने आप को स्टेबलाइज कर ले, ताकि वो फिर से आपके ऊपर अब्यूज कर सके। हम्म। हम्म। बट इट्स नॉट फॉर द तो सोल ग्रोथ, इट्स फॉर लाइक कि राइट। हाँ भाई, हम जो कर रहे हैं बस आप उसको सहन करते जाओ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, है ना, राइट। यही उनके माइंड में रहता है। राइट। राइट। तो तो मुझे नाउ ये हाउ भी इज योर कई हेल्थ, बार, अपर्णा? नाउ लाइक क्या चीज? बिफोर आपने एक्सप्लेन किया सारा, इतने सारे हेल्थ इश्यूज, हम्म। फटीग, हम्म। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दिस हीलिंग प्रोग्राम, अब आपकी इमोशनल स्टेट कैसी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अभी आपके साथ बैठकर हंसकर बात कर रही हूँ, ये यू हम्म। मे नॉट, दिस इज ह्यूज। आई कॉल माई सेल्फ अपर्णा 2.0. The Aparna 1.0 was finished. She was, I हम्म। shouldn't say that specifically, she was brutally murdered by my in-laws and हम्म। everybody else together हम्म। combined, literally. हम्म। तो वो जो पहला मेरा इनोसेंस था पहले, जो वो भी मेरे पास नहीं है। हम्म। मतलब लोगों की तरफ देखने का नजरिया मेरा अलग है। एग्जैक्टली। आई डोंट इजीली ट्रस्ट पीपल, बट यस। दैट इज गुड. हाँ ऑफ कोर्स। आई हैव सेट अप माई बाउंड्रीज, which हाँ। again is very good. हम्म। Nobody has easy access to me, which is हम्म। even very good. हम्म। मैं अभी भी मतलब, एंड देन आई हैव ट्राइड टू मेंटेन दिस बैलेंस के मुझे, आई डोंट वांट टू बी मीन एंड बिटर एंड बैड एंड नेस्टी. हम्म। मुझे बट वो सारा केयरफुल, है ना, बट हाँ, बट केयरफुल। केयरफुल, या एग्जैक्टली. ये तो है अपनी कि जो सारी, नार्सिसिस्टिक अब्यूज से होके एग्जैक्टली. गुजरते हैं,
अब वो पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं होते, उनकी बिल्कुल। पर्सनैलिटी पूरी चेंज जी रहती है। यानी इस अब्यूज से जी पहले जैसे हम लोग होते हैं, इनोसेंट होते हैं, हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद आपका मन कर भी रहा है अगर किसी को के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, तो भी आप 2 बार सोचते हो कि नहीं, पता नहीं। जी और ये जी। बुरा नहीं है, ये जब तक बुरा आप नहीं अच्छी है। तरह से किसी को जज ना कर लें, अच्छी तरह से किसी को एनालाइज ना कर लें कि वाकई में ये पर्सन ठीक है या नहीं है, तो वो एक चेंज, परमानेंट चेंज आ जाता है सभी विक्टिम्स के अंदर जिनके साथ भी नार्सिसिस्टिक अब्यूज हुआ है, हाँ, कि वो इजीली ट्रस्ट मतलब नहीं एक तरह करते। की, हाँ, एक तरह की एक्सरे विजन है मेरे में कि हम्म। अगर कोई कुछ कहे तो आई कैन, सिर्फ हम्म। वो क्या कह रहे हैं वो नहीं, उसके पीछे का जो उनका हम्म। इंटेंशन है हम्म। वो भी मैं भाप लेती हूँ। मतलब हम्म। आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, हम्म। हम्म। therefore I know how to now protect myself. हम्म। The other good thing that has happened is, हम्म। जो पहले मेरे सारा गोल्स, मेरे सारे जो था वो फैमिली के आसपास था, माय फैमिली इज फर्स्ट, उनके लिए सब कुछ, बच्चे के हम्म। लिए सब कुछ। हाँ। एंड आई हैड लॉट, मतलब ये मेरी दुनिया बहुत छोटी सी थी, हाँ। लिटरली इट वाज सो स्मॉल वर्ल्ड। हम्म। इट वाज मी, माई सेल्फ, माई हाउस, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, वो सब, मतलब हम्म। दैट वाज दैट स्मॉल। हम्म। एंड देन सडनली आउट ऑफ द ब्लू आई रियलाइज सब मेरा चला गया इतना। It was so sad to see everything just break down completely and everybody pointing fingers at me and saying, you are responsible. हम्म। That wake up moment was when I realized मैंने अपने लिए क्या किया लाइफ में। हाँ। अपना करियर बैक बर्नर पे रखा, अपनी हाँ। सारी जो लाइक्स थी वो सारी बैक बर्नर पे रखी। हाँ। तो अभी देर इज दिस फीलिंग ऑफ नो, आई नीड to love and respect and admire myself first, हम्म। and हम्म। it is not selfish to do that, एग्जैक्टली। यू नो। तो पहले अगर मैं बैठकर कुछ डायरी लिखूं या मेडिटेट करूं या कुछ म्यूजिक सुनूं, हाँ। समटाइम्स आई वाज शेम्ड फॉर इट। आई वाज लाइक, क्या सेल्फिश की तरह बैठी हो, खाना बनाना है, काम करना है, ये करना हाँ। है, वो करना है। हाँ। तो आई didn't have the guts at that time to get up and say, you know what, this is my time, let me do it my way. हम्म। But and when I mustered the courage to do it, I was always labeled, क्या अपना सिर्फ अपना देखती है, हम्म। इसको अपना, हम्म। she doesn't really care for the family, or she हम्म। doesn't, as I told you before, कि हम्म। कुछ भी हो गया तो अरे इतना भी तुम सहन नहीं कर सकती, sort of. हम्म। So, हम्म। in any case, coming back, हम्म। I think I have learned to value myself more, हम्म। and I हम्म। understand the value of self-love the हम्म। best. Not that I didn't हम्म। understand it before, but हम्म। self-love, number one, is not selfish, and number two, it should be empowering, and it is empowering. Where हम्म। you really understand your worth for who you are, हम्म। and you're willing to change for others, but not your core. हम्म। You don't want to change your core. You हम्म। you you remain who you are, but you still have the boundaries around yourself हम्म। where you can celebrate your identity and be yourself. This एग्जैक्टली। was, I think, the biggest learning या for बिगेस्ट me. लर्निंग नार्सिसिस्टिक अब्यूज से जितने भी लोग होके गुजर रहे हैं, उनका जो मेन इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन होता है वो एक तो सेल्फ वर्थ होता है और एक सेल्फ लव होता है। Self-worth and self-love, absolutely. जब आप Yeah. खुद खुद को ही आप यहाँ रखोगे और अपने पार्टनर को यहाँ रखोगे, तो फिर ऑब्वियसली आप अपनी वर्थ इतनी कम कर लोगे, तो आप फिर वो उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते चले जाओगे, एडजस्ट करते चले जाओगे। और जैसे मैंने कहा कि वो तो एक ऐसे पॉट है जिनमें ऐसी इतने होल्स हैं कि आप कितना भी पोर कर लो, कितने भी चीजें उसमें डालो, इट्स नेवर सफिशिएंट। सो It's never अपर्णा, enough. आपको पूरे प्रोग्राम में मेरी मेंटोरशिप कैसी लगी, और कैसा लगा सपोर्ट? The biggest, you're very approachable. You're extremely approachable. You're extremely empathic. आप समझते हो प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। मतलब मुझे पता है, जब मैं ये सारा चल रहा था, क्लैरिटी नहीं थी, स्टकनेस, मतलब वो फीलिंग थी कि ये जो बहुत सैडनेस है, ये जो बहुत दुख है मेरे अंदर, पता नहीं वो क्या होगा, उसका कैसे उसको रिजॉल्व करूं। हम्म। यू न्यू एग्जैक्टली व्हाट सॉल्यूशन देयर हैज टू बी। हम्म। तो आप उसको पिन पॉइंट कर सकते थे, जो मैं, मतलब आई कुड ऑफ कोर्स नॉट आइडेंटिफाई बिकॉज आई वाज सराउंडेड बाय दैट फॉग। हम्म। That I think is your biggest wonderful quality, and I really appreciate it so much. हम्म। थैंक Secondly, when I ask you a question, I, हम्म। I remember I used to literally grill कि नहीं, ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा।
you had answers to those questions. हम्म You didn't come up and say ये क्या मुझसे सवाल कर रही है, कैसे, मतलब मैं कौन हूँ, and how dare she ask me these kind of questions. You didn't have that. You didn't have that with you. जो यूजुअली मेडिकल प्रोफेशंस में, या जो लोग थोड़े से मतलब जिनको लगता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ पता है, हम्म मेरे से सवाल आप कैसे पूछ सकते हो, हम्म आपके साथ वो इश्यू नहीं है. हम्म तो देर इज नो ईगो. If हम्म I have to just put it in a very simple words, there is no ego, and there is, you want to help genuinely, which I realize many times. हम्म Uh, and I must have asked you the same question over and over again, and you have explained it over and over again. But holding hand हम्म is required. It हम्म is necessary, हम्म because that was one of my concerns when I asked you the first time we had a हम्म session. If you remember, मैंने कहा था आप हाथ छोड़ोगे तो नहीं, And I because said, you नहीं, had हमने हाथ explained to पकड़ा me है कि तो नहीं हम, छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी. हाँ हाँ, you had explained to me Just कि like नहीं a we, lovers. हाँ एक कि जब दोस्त तक की आप तरह, बिकॉज डेस्टिनेशन पे आपने, नहीं पहुंच हाँ जाते हो, आई एम नॉट गोइंग टू लीव योर हैंड्स, दैट हैंड एग्जैक्टली, होल्डिंग विल बी देयर. हाँ आपने कहा था कि नहीं वी डू लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग, हम करते, तो आई वॉज नॉट रियली वेरी, मतलब मुझे भरोसा नहीं था कि सचमुच आप ऐसा करोगे, क्योंकि पहले तो ऐसा किसी ने नहीं किया था मेरे हम्म साथ. हम्म हाँ. तो मुझे ये जरूरी था कि एक तो नंबर वन, देयर समथिंग एल्स दैट आई वांट टू ऐड टू दिस एंटायर डिस्कशन. आपका प्रोग्राम छोटा सा नहीं है. हम्म It is that long lengthy program which is required. हम्म you know क्योंकि इतने छोटे से समय में आप वो सारी चीजों को रिजॉल्व नहीं कर सकते जो सालों से आपने इकट्ठा करके रखी है, हाँ. पहली बात. हम्म दूसरी बात, ये जब आप when you're going through this dark tunnel, हम्म when a person is going, as I was going through, it was literally very dark times, हम्म because in order to heal I had to face all those emotions, all हम्म those हम्म, so if I may say monsters again. हाँ. It is a very scary journey. It is a very हम्म scary part, हम्म and it makes a person very vulnerable. तो हम्म ऐसे समय में जब हम गिरते हैं, तो there has to be somebody who really holds our hands and explains कि नहीं ठीक है, हम्म it happens, you हम्म fall down, you're going to get up again, no हम्म worries. हम्म, ये जो आपका हैंड होल्डिंग था, हाँ. और आपका जो ये अश्योरेंस था, हम्म it's okay, you will see the light of the day one day, हाँ just keep doing it, keep doing it, keep हाँ. doing it. I remember doing the exercises for weeks on end and feeling so tired and getting so frustrated कि ये हम्म कब खत्म होगा. हाँ वो खत्म हुआ, हाँ. और जब खत्म हुआ तो मुझे, हम्म that was like that was my biggest trophy, and but I didn't do it by myself. You were with me, and I must say that is the biggest asset of your program, which is wonderful, and the length of the program. हम्म तो वो लेंथ भी जरूरी है, बिकॉज दिस इज 20 साल का. आप कैसे, मतलब 20 दिन में, या हम्म. you need time for it. Yeah, and A it's human, not only about time also. You need multiple things, multiple healing modalities. For yes, example, exactly. It has to be uh, a whole इस प्रोग्राम approach. में हीलिंग मोडालिटी तो है, पर जैसे एज यू सेड कि क्वेश्चन आंसर सेशन जो होता था रिगार्डिंग हाँ, योर इश्यूज, रिगार्डिंग लाइफ, दैट क्वेश्चन आंसर सेशन, आई थिंक वो अपने आप में मुझे लगता है आपके केस में तो बहुत ज्यादा हीलिंग रहा. एम आई राइट? it it was, because I remember working over the week and then writing down questions and asking you. हम्म बहुत जरूरी था that हम्म week. Not only the weekly sessions, but even you giving access and allowing us to call you and ask you questions हाँ was also important for me. Because अगर मैं 2 दिन काम करूँ और एक हम्म, सवाल आ जाए, हाँ. या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ जाए जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई कांट वेट अंटिल संडे, बिकॉज हम्म आई सो वांट टू डू दिस सो फास्ट एंड सो क्विकली. हम्म I could call you, which हम्म was which was very important. So हम्म not only the weekly sessions, but this call in between, which you are willing to take हम्म, via chat or via a quick discussion. That was हाँ also very helpful for me. हाँ. यस, सो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ सोल सर्जरी सिस्टम प्रोग्राम, कि जी, जहाँ पे ग्रुप कोचिंग तो है लेकिन वन टू वन जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए. यानी कि वीकली क्वेश्चन आंसर सेशंस तो मेरे साथ होते ही हैं. इसके अलावा अगर किसी पार्टिसिपेंट को लगता है कि उसे पर्सनली मुझे कॉल करके या मुझे मैसेज करके मुझे मुझे कुछ पूछना है, तो वो पूछ सकते हैं, है ना. तो आई एम एक्सेसिबल. ऐसा नहीं है कि जी, आप
आपकी बात ही नहीं होगी मुझसे, या आपको पूरा 1 वीक वेट करना है ना, ऐसा नहीं है। हार्डली ज्यादा से ज्यादा मैं कभी 1 या 2 घंटे वेट कराया होगा किसी को, या मैं बिजी हूँ, कोशिश करती हूँ जिसने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है सेम डे मैं उसको आंसर कर दूँ, है ना। हम्म। सो राइट। और व्हाट अबाउट द सपोर्ट सिस्टम बाय माय ग्रोथ मैनेजर प्रियंका? Oh, Priyanka is sweet. Priyanka is absolutely sweet. Priyanka is, by the way, वो और मैं हम लोग we speak the same language, Marathi, both of हम्म us. हम्म So sometimes not only can I ask her questions in Marathi and in English and Hindi, we go back and forth. हम्म She is another sweet person. She is very supportive. हम्म Uh, उसको कोई सवाल पूछो तो उसकी अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेगी समझाने की, ओके, हम्म, एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स, हाँ बट देन समटाइम्स वैसे नहीं नहीं प्रियंका ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हाँ। देन शी से आप ऐसा करो मैम से बात कर लो, हाँ, ऐसा करो मैं ऐसा करती हूँ, मैं हम्म वैसा करती हूँ, आपको मटेरियल फॉरवर्ड कर देती हूँ। हम्म, तो उसके हिस्से में जो भी चीजें हैं हाँ। विल डू ऑल ऑफ दैट, मटेरियल फॉरवर्ड कर देती हूँ, व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस कर देती हूँ। हम्म, आज सुबह उसका कॉल था मुझे ये बताने हाँ। के लिए that you have a meeting with them and that whatever, so I couldn't हाँ। accept her call. But she's accessible, हम्म she's she's a very kind and a very gentle person. it was हम्म it was a um हम्म, it was a pleasure working with her. राइट। तो व्हाई शी वाज एबल टू हेल्प, क्योंकि उसने खुद भी मेरे अंडर वर्क किया हाँ हाँ, है ना। she तो was शी a student. अंडरस्टैंड्स मी, एंड दिस इज व्हाट माय विजन इज एक्चुअली। सोल सर्जरी सिस्टम जो है, इसके साथ अगर मैं देखूं तो मेरे दो विजन्स हैं। पहला तो मैं हम्म जो भी जिनके साथ ये टॉक्सिक रिलेशनशिप और नार्सिसिस्टिक अब्यूज हुआ है उनके वुंड्स हील हो जाएं, वो लाइफ में फिर से एक बार हैप्पी हो जाएं, इमोशनली स्टेबल बन जाए। दिस इज द टॉप मोस्ट विजन। और सेकंड विजन ये है कि जो लोग हील हो चुके हैं मैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दूं थेरेपिस्ट बनने के लिए, एंड नाउ दे हेल्प अदर पीपल। oh, तो that is एक wonderful. तरह से लाइक कि पहले आप खुद हील हो जाओ, और खुद हील जी होने के बाद आप दूसरे लोगों को हेल्प कर सको। सो दिस इज माय सेकंड विजन कि मैं बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करूं और जो पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड हो, और हम सभी मिलकर के पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्वीट से इनोसेंट से एम्पैथेटिक लोग हैं जो बेचारे जिनको नार्सिसिस्टिक लोग इतना ब्लेम करते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप जब ब्रेकअप होती है सारा ब्लेम उनके सर पे आ जाता है। बच्चों को मैनिपुलेट कर देते हैं कि हम तो साथ में रहना चाहते हैं, तुम्हारी मम्मी ने ये हमारी फैमिली ब्रेक करी है। तो इतना उनको इतना दुख होता है इन लोगों को, तो कैसे इनको हेल्प कर सके इनके वुंड्स को हील करने में, ताकि वो एक एटलीस्ट एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। लोनलीनेस एक पार्ट होता है, बट वो भी ये नहीं होता हमेशा कंटिन्यू रहेगा। जिंदगी बहुत बड़ी है, लाइफ में आगे कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक मैरिज होती है उसमें जो एक मैरिड वुमेन होती है उसको वो जो फ्रस्ट्रेटिंग लोनलीनेस फील होती है ना, हाँ, या इट्स अ वेरी लोनली जर्नी, बहुत अकेला होता है, मतलब वो है टेरिबल साथ में लेकिन वो टेरिबल। है नहीं, हम्म। इट्स वेरी लोनली। तो या मैं कहती हूँ कि फ्रस्ट्रेटिंग लोनलीनेस की जगह ये लोनलीनेस बेटर है। कम से कम इसमें बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन नहीं है। फ्रस्ट्रेशन नहीं है, हरासमेंट नहीं है, अब्यूज हैरेसमेंट नहीं नहीं है, गैस लाइटिंग नहीं है, रोज आपको है, ऐसा नहीं gaslighting लगेगा नहीं है। कि एवरी डे लाइक अगर आप एक टॉक्सिक मैरिज में हैं, तो हर दिन सुबह एक वॉर की तरह लगता है कि आप एक वॉर पे जा रहे हो। जी अब क्या बिल्कुल। होगा, अब आपको कैसे रिप्लाई करना है, अब आपको क्या करना है, आप कैसे डे को मैनेज करना है। एटलीस्ट आप जब इन मैरिज से टॉक्सिक मैरिज से बाहर निकल के आते हो तो एटलीस्ट जब आप सुबह उठते हो अकेलापन होता है पर पीस होती है। Yeah, and if you make friendship with yourself, I think that akelapan also is can be और धीरे धीरे resolved. वो लोनलीनेस भी चली जाती हाँ हाँ है ना, वो भी क्लियर हो जाती है अगर आप प्रॉपर वर्क करो अपने ऊपर। हाँ। मतलब मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो अभी फॉर एग्जाम्पल अगर काफी सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो अभी बाई चांस थेरेपी नहीं ले सकती है ना, वो हम्म लोनलीनेस जब आप थेरेपी लेते हो तब रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर आप जैसे अभी आप थेरेपी नहीं ले सकते हो तो मैं हम्म, उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि उस लोनलीनेस से ये लोनलीनेस बेटर है। जी जी ऑफ कोर्स। फिर थेरेपी लो तो वो भी चली जाएगी, वो लोनलीनेस भी चली हम्म, जाएगी, फिर आप लाइफ में फिर से आप यू नो हाँ हाँ हाँ। क्रिएटिव हो लोगों जाओगे। को, हाँ लोगों को होप होता है, आशा हाँ। होती है हम्म कि हम ये इस इंसान को या तो बदल सकते हैं
या हम्म हम खुद बदल के कुछ अच्छा कर सकते हैं, एंड सम हाउ द रिलेशनशिप विल वर्क. हम्म दिस होप इज ऑलवेज देयर, सम हाउ थिंग्स विल वर्क. हम्म Unfortunately, things never work. हम्म हम्म No matter what you do, it never works. हम्म So the only option is to set up huge, big boundaries हम्म or just break that relationship if you possibly can. हम्म I don't believe in it at all. मतलब मैं नहीं बिलीव करती कि रिलेशन के रिश्तों को तोड़ना चाहिए. हम्म, मैं बिल्कुल नहीं बिलीव करती. लेकिन अगर आप मर रहे हो, मतलब जैसे हाँ मेरे साथ था, मुझे, अगर मैं उस रिश्ते को नहीं तोड़ती, हाँ। आज मैं जिंदा नहीं रहती, मुझे पता है. और हमारी कंट्री में कितनी वुमेन्स डेली मतलब ऐसे मर रही हैं बिकॉज ऑफ नार्सिसिस्टिक अब्यूज, और किसी को कानो कान खबर नहीं है। खबर नहीं है. कानो कान खबर मुझे नहीं है। मुझे भी बच्चों को नहीं मतलब, पता उनकी मम्मी क्यों मर गई। एग्जैक्टली, उनको मारने वाले एग्जैक्टली. कोई और नहीं, उनके खुद के ग्रैंड पेरेंट, उनके खुद के फादर थे। बिकॉज ऑफ शी इज डाइंग, शी डेड बिकॉज ऑफ दिस नार्सिसिस्टिक अब्यूज। ये एक ऐसा मर्डर है जो इतना साइलेंट चल रहा है एंड नोबडी नोज। मेरी अपनी, श्रुति जी, मेरी अपनी शादी में किसी को पता नहीं था. वी हैड दिस हैप्पी फैमिली. हम्म। मतलब बड़ा घर है, 2 गाड़ियां हैं, सब कुछ, इट्स अ परफेक्ट ड्रीम फैमिली. हाँ मेरे इस चेहरे पे शिकन नहीं, मेरी कुछ नहीं, हाँ मतलब नो बडी न्यू आई वॉज डाइंग इन हाँ, साइड. क्योंकि हम कोशिश करते हैं ना। कोई भी बहुत एम्पैथेटिक कोशिश वुमन करते कोशिश हैं. करती है कि यार दूसरों को ना पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, एग्जैक्टली. और फिर हस्बैंड की बातें थोड़े ही ऐसे करते ना, वी, आई मीन, हाँ, दैट्स वो नॉट हमारा माई इंडियन संस्कार. कल्चर है ना, हमारे संस्कार है कि नहीं, हम एग्जैक्टली. बाहर वालों को नहीं पता चलने देंगे कि अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। जी जी जी. So I think what you're doing is wonderful. It needs, the awareness needs to spread, हम्म and women need to get this courage that it is okay to live life for yourself. हम्म हम्म It is okay to pursue your goals, and it is okay to love yourself. It is not selfish. मतलब आप फैमिली और अपना खुद का करियर भी कर सकते हो if the हम्म। family supportive enough. राइट। तो जो लोग So, देख रहे हैं ना, मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, पर्टिकुलर उन वुमेन्स का जिनका जो व्यू है, जो डिवोर्स वुमेन्स रहती हैं उनके लिए जो उनका व्यू है ना, लोग यूजली क्या सोचते हैं, मुझे भी जब तक नार्सिसिज्म के बारे में नहीं पता था तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि अच्छा मैरिज ब्रेक कर दी, डिवोर्स हो गया तो शायद हस्बैंड के साथ एडजस्ट करना नहीं आया। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ ये एकदम लिमिटिंग बिलीफ है और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आपकी शादी इसलिए चल रही है अच्छी तरह से क्योंकि आपका जो हस्बैंड है ना वो इम्पैथी है उसके अंदर। तो जैसे एक मैरिज होती है ना, एक कार की तरह है, या आप कह लो एक कंपनी की तरह है जहाँ पे दो लोग मिलकर काम करते हैं। या आप एक कार मान लो जिसके 4 पहिए हैं, और जी. जब आपके 2 पहिए चल रहे हैं अच्छे से और आपके आपके हस्बैंड भी अपने 2 पहिए अच्छे से चला रहे हैं, तो वो जो कार है ना स्मूथ चल रही है। आपकी मैरिज इसलिए स्मूथ चल जी. रही है क्योंकि आपका हस्बैंड वाले जो 2 पहिए हैं ना वो बिल्कुल नॉर्मल है। इस तरह की मैरिज में क्या होता है, जहाँ पे एक एम्पैथेटिक वुमेन होती है और एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड होता है, या आप कह लो, ठीक है, कई लोग मुझसे बड़े नाराज हो जाते हैं स्पेशली जो जेंट्स है ना, कि मैम आप हमेशा यही कहती हैं कि भाई नार्सिसिस्टिक हस्बैंड। मैं कहती हूँ चलो नार्सिसिस्टिक वाइफ पार्टनर मान लो। वाइफ भी ठीक है। होती है. मतलब मेरे केस में तो इट्स नॉट जस्ट हस्बैंड, इट वाज आल्सो हिज फैमिली, जिस हाँ जहाँ पे लेडीज भी है. एग्जैक्टली, तो लेडी ऐसा भी है। नहीं है कि मतलब सिर्फ वॉट मर्द है, एवर, इसमें मतलब वीमेन भी चाहे है. वो हस्बैंड या हो या या. वाइफ हो, जो भी हाँ हाँ. नार्सिसिस्टिक है, तो नार्सिसिस्टिक जी जी. पार्टनर क्या करता है, अपने तो पहिए हटा ही लेता है हम्म. ना। अब कार कैसे चलेगी। फिर भी जो दूसरा एम्पैथेटिक पार्टनर होता है वो फिर भी बड़ी हिम्मत करके उस गाड़ी को किसी तरह खींचने की कोशिश करता है। तो उसमें भी वो नार्सिसिस्टिक पार्टनर क्या करते हैं कि वो उस पर भी पत्थर मारते हैं उसके पहियों पर, कि वो दो दो पहिए भी है ना वो पूरे हिलने लग जाते हैं। मतलब इसीलिए ये मैरिज पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है। कितना कोई अपने दम पर खींचेगा, कहाँ तक करेगा, कहाँ कहाँ तक तक करेगा. करेगा। तो प्लीज अगर आपको पता चलता है कि भाई ये वुमेन सेपरेटेड है या ये वुमेन डिवोर्स्ड है, तो आप उसके लिए एक एम्पैथी रखें। आप उसको उस नजरों से ना देखें कि भाई इसको एडजस्ट करना नहीं आया या इसके अंदर कोई कमी है। नार्सिसिज्म के बारे में समझें, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कितना कुछ होता है इन वुमेन्स के साथ और कितना ये एडजस्ट करती हैं, कितना ये लोगों से छुपाती हैं। हाँ. और अगर कोशिश भी हम करें ना पति के साथ, या मतलब अपने स्पाउस के साथ, हम्म तो अगर घर के लोग सपोर्टिव नहीं है, हम्म तो वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. मतलब मेरे केस में, अगर वो कोशिश भी, मतलब देयर इज अ फेज वेयर इट इज अ गुड फेज एंड अ बैड फेज, गुड फेज एंड अ बैड फेज. हम्म तो अगर नजर आया कि इनका थोड़ा गुड फेज चल रहा है,
तो हम्म भी जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हम्म इन लॉज, हम्म दे कैन नॉट टॉलरेट दैट समथिंग गुड इज हैपनिंग हियर। हम्म तो वो भी कोशिश करेंगे उसको तोड़ने की। हम्म So the woman is not just fighting if it is a if it's a cluster of people around her. She's not struggling by herself. She हाँ has to struggle. I mean, it's not just the husband she's facing. हाँ It is a bunch of him and his family his around, parents his parents around that you are facing at the same time, which is extremely taxing. हम्म हम्म बहुत इमोशनली टैक्सिंग होता है, और आप नहीं उस मतलब there's a limit. हम्म As a human being, there's a limit to it. हम्म Yeah. तो राइट, तो अपर्णा, कम बैक टू द सोल सर्विस सिस्टम प्रोग्राम। तो आपको क्या लगता है ये प्रोग्राम किसको ज्वाइन करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? Um, और we are already discussing about NPD and narcissistic हम्म abuse है, तो abusive situation में जो भी है उनको तो ये प्रोग्राम बिल्कुल करना चाहिए। हम्म लेडीज हो, जेंट्स हो, मतलब हम्म men women both of them, and I wouldn't say that it's always the men. I would say that there are women also, because I have seen that हाँ in my own. हम्म Whoever wants to, even if it is not an abusive situation, even if you want to improve your life a little bit, because if I think, suppose I had joined your system, even now if I have to retake your system again, हम्म yeah, after healing, after coming to ACE, matlab, I was at the bottom of, I was in the basement level, say, okay, and हम्म I climbed the stairs, and I come to first floor now. हम्म uh, अगर इस लेवल पे अगर मैंने आपकी सिस्टम फिर से दोबारा ली, जो आई प्लान टू डू इट एक्चुअली आफ्टर 6 months, आई थिंक आई रीटेक योर सिस्टम अगेन because I राइट have access to all the program. हाँ हाँ I think I will go another second level because I राइट would have then understood myself better. हम्म I would have worked a little better on myself. I would have done more deeper work. हाँ Uh, Professionally, I would have improved. हम्म Uh, तो ऐसा नहीं है कि जो अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में है उनको ही करना चाहिए, उनको तो करना ही चाहिए, लेकिन जो हाँ अलग अपने आप को जो एनरिच करना चाहते हैं, हम्म मेरे ख्याल से उन्हें भी ये सिस्टम बहुत काम करेगी। हम्म Because the techniques of EFT, the techniques of tapping, the techniques of affirmations, हम्म जो मेरे फिर meditations जो आपके हैं, they are हम्म very deep. हम्म They are not, they take a lot of work. मतलब मुझे अभी लगता है कि अगर मैं उनको दोबारा से करूँ, हम्म तो I'll do it with a different perspective, and I'll definitely reap more benefits. हम्म So हम्म yeah. ग्रेट ग्रेट। और ओवरऑल पूरा सोल्सरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, वो आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा कि उसमें सबसे ज्यादा आपका यूनिक आपको क्या लगा इस पूरे प्रोग्राम में, जो इसका जो स्ट्रक्चर है? यूनिक, I think your Sunday question and answers was the most unique feature for me, क्वेश्चन आंसर योर because फेवरेट बना? it was because you have lectures that you deliver via videos, हम्म which are pre-recorded, हम्म and then you also have materials that you give. But हम्म then sometimes I used to have questions on those materials. I had used to have questions on those videos because हम्म वीडियो आपका किसी और के साथ चल रहा है, तो अगर मुझे सवाल पूछना है तो मैं कैसे पूछूं, तो इसीलिए हम्म, मुझे आपका जो संडे का Q&A सेशंस है, हाँ मुझे वो सबसे ज्यादा यूजफुल लगे, क्योंकि मैं अपने सवाल, अपनी सारे जो डाउट्स है, वो हम्म मैं उस दिन क्लैरिफाई कर सकती हूँ। आई कुड आस्क यू हम्म clarify. So I think that Q&A, the regular हम्म hand holding, is the highlight and the star feature of your system. हम्म Absolutely. थैंक यू सो मच अपर्णा। Most राइट। welcome. सो अपर्णा, नाउ आई रियली वांटेड टू आस्क कि जो विमेन्स हैं, है ना, जो अभी हिम्मत नहीं कर पा रही टॉक्सिक रिलेशनशिप में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसी इंक्वायरीज आती हैं, और दे आर लिटरली सफरिंग, और एक तरफ उनके मन में इस नार्सिसिस्टिक पार्टनर के लिए प्यार भी है, हेट भी है। Hmm. इनके लिए क्योंकि आप निकल कर आए हो इस टॉक्सिक मैरिज से बाहर, और ये बहुत बहुत करेजियस स्टेप है, 20 years के बाद मैरिज से बाहर निकल कर आना, बहुत ही करेजियस स्टेप है ये। तो जो लोग सफर कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह सफर कर रहे हैं, इनको आप क्या क्या स्ट्रैटेजी पॉइंट बोले, या क्या एक्शन या क्या माइंडसेट होना चाहिए कि
ये बाहर निकल कर आ सके, क्योंकि डैमेज प्रॉब्लम ये है कि जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं मैम मेरा बेटा अभी सिर्फ 4 साल का है, मेरा बेटा अभी सिर्फ 6 महीने का है, तो मैं बच्चों के लिए रह रही हूँ, बच्चों के लिए रुक रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना ज्यादा आप वेट करोगे धीरे धीरे ये अब्यूज डीपर होता जाएगा, और जिस बच्चे के लिए आप इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो, सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हो, कल को वही बच्चा आपके अगेंस्ट खड़ा होगा। इस रिलेशनशिप में रहने की बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और मोस्टली वुमेन्स को कॉस्ट जो पे करनी होती है अपने बच्चे को गंवा के करनी पड़ती है। तो जो लोग सफर कर रहे हैं अपर्णा, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, क्या इन वुमेन्स का माइंडसेट होना चाहिए, क्या इनके एक्शन होने चाहिए कि ये बाहर निकल कर आ सके? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो है कि दे नीड टू एक्सेप्ट दैट इट इज नॉट देम, हम्म। it is not you. The first thing अमेजिंग, I would tell to all ब्यूटीफुल। these ladies, हम्म। all the men, whoever is in such a relationship, it is हम्म। not you. हम्म। ये जो हो रहा है, you are not हम्म। responsible for it, number हम्म। one. हम्म। Number two, you have the strength and the courage inside of you yourself that you हम्म। need to tap हम्म। in order to come out. हम्म। And you can come out of it. हम्म। And in order to do that, हम्म। आपको अपने आप पे भरोसा करना है, और दूसरी बात बहुत जरूरी है, you need to have financial independence by हम्म। default. हम्म। मतलब और मतलब for women this is हम्म। so important. I cannot stress this enough. हम्म। हम्म। Financially, you have to be independent. If you're not, try somehow to हम्म। make sure that you get that independence so that हम्म। you at least get some courage and support to break free. हम्म। And try to have a support system around you. मेरे लिए मेरा support system, मेरे हम्म। those some of my friends and हम्म। family members. हम्म। And then, हम्म। of course, when I joined the soul surgery system, हाँ। it was you and the extended हम्म। colleagues and the people who we used to या। talk during Q&A. हाँ। So it is not you. Number two, financial independence. And number three, having a support system. हम्म। Extremely important. You need हम्म। to have some place where you can go and talk and हम्म। share. Not anything, at least have a diary or a journal where you can write your हम्म। thoughts. हम्म। बस इतना कंफ्यूजन होता है कि क्लैरिटी के लिए यू दिस हैव क्वेश्चन टू इज ऑल एक्सप्रेस अबाउट कंफ्यूजन। एग्जैक्टली. हम्म। सो लाइक यू सेड, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, उसको हाँ। एक्सप्रेस करने के लिए आपको हम्म। एक मीडियम चाहिए जो सेफ है. हाँ। सेफ मतलब जो आप ऐसा नहीं कि आपकी बात सुन के फिर आप ही पर उल्टा कर दे, जैसे हम्म। आप जैसे अब्यूजिव लोग करते हैं. मतलब हम्म। मेरे साथ ऐसा हुआ कि अगर मैं कुछ बात शेयर करती थी, हम्म। that information was taken and then used back against me. It was या। used against me to sabotage me. हम्म। तो सेफ सपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए जहां आप अगर अपनी बात कहे तो हम्म। वो आपको जज ना करे, अपना हम्म। ओपिनियंस ना दे. हम्म। आपको ये नहीं कि आप तो बेवकूफ हो, यू हैव लॉस्ट योर हम्म। माइंड, यू गॉन क्रेजी, ऐसा कुछ नहीं होता. हम्म। Not these kind of people, people who truly understand. And I हम्म। think such people are either your best buddies and best friends, or a हम्म। system like yours, which is, हम्म। where you yourself are there and the other people are there to understand. Wouldn't राइट। laugh when you ask silly questions, so called silly questions, हम्म। जो के लिए बहुत silly लगे, लेकिन तो support system is required also. एग्जैक्टली exactly. और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तो आप खुद है, मतलब अगर आपने खुद को जी सपोर्ट नहीं किया ना तो कोई फैमिली कोई फ्रेंड आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे खुद को सपोर्ट करना है, मुझे इससे जी. बाहर निकलना है। और ऑब्वियसली ये आपका पॉइंट बहुत सही है कि एक फाइनेंशियल जो एक इंडिपेंडेंस है वो जरूर होनी चाहिए। बहुत जरूरी. तो उसके ऊपर वर्क करें। और जिंदगी बहुत बड़ी है, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो जो एक इंडिपेंडेंस है, दोनों ही चाहिए, फाइनेंशियल भी और इमोशनल भी। जी जी. उसमें हमारी थेरेपी और हीलिंग वर्क करती है। हीलिंग की हेल्प Right, से आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हो। और बाकी right. जब आपके पास एक इमोशनल इंडिपेंडेंस आ जाती है तो फिर आप फाइनेंशियली भी धीरे धीरे आप फिर ट्रैक पर आने financial लग जाते हो। exactly right. जी, बिल्कुल सही Okay, कहा. Aparna, and at last, I wanted to ask, what's your last message to everyone or to the audience, जो YouTube के followers हैं, Facebook वो page नो के मैसेज हैं? प्लीज. आई एम नो. क्या मैसेज देना चाहोगे सबको, एक लास्ट मैसेज? Just life is too beautiful and too good, so please don't waste it on people who don't recognize your worth. हम्म।
जो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, जिनके लिए आप मर जाओ फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लीज ऐसे लोगों की अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो. लाइफ इज टू ब्यूटिफुल, टू गुड टू वेस्ट ऑन सच थिंग्स. इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल. और अमेजिंग। देखते देखते समय जाता है, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट फॉर मी 20 years जस्ट, मुझे लगता है क्या किया मैंने 20 साल तक. हम्म। I do. So that waste of time, please don't waste your time, is all I हम्म। would say. और So एक और मुझे मन कर रहा है क्वेश्चन पूछने का कि हाउ यू डील विद लाइक जितनी भी मैरिड वुमेन है दे आर लिटरली स्केयर्ड ऑफ लोनलीनेस, राइट? लिटरली दे आर स्केयर्ड ऑफ लोनलीनेस कि फैमिली बिखर गई, सब अलग थलग हो हाँ, गए, अब मैं अकेली पड़ गई। तो लाइक आपने लोनलीनेस को कैसे डील किया, और इसके क्या फन करा, क्या मजे करे, या कैसे आपने इस चीज को ओवरकम करा लोनलीनेस को? उसके लिए आपके क्या, व्हाट यू डिड एग्जैक्टली? that's such an important question because अभी that is exactly what I have in my life. हम्म। मेरे जो इन-लॉज पहले थे, बहुत बड़ी फैमिली है, हम्म। और सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स नहीं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था. हम्म। वो सारे रिश्ते अब नहीं रहे, हम्म। क्योंकि मेरी इन-लॉज ने पता नहीं उनको क्या कहा, क्या हाँ। बताया. हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जहाँ से मैं नहीं हूँ अभी, वो हाँ। रिश्ते हैं जहाँ पर मैं नहीं हूँ अभी. हाँ। मेरी उम्र की कितनी सारी मेरी, एक यू नो सॉरी अपर्णा, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहती हूँ, इस मैरिज की एक बड़ी खास बात बता रही हूँ मैं आपको। मतलब जब नार्सिसिस्टिक के साथ ये विमेन जब रह रही होती है ना, ये जितने भी अब्यूज कर रहे होते हैं तो वो तो अपनी फैमिली से सब छुपा रही होती है। मतलब वो अपनी फैमिली को एक सिंगल वर्ड नहीं बोल रही होती है कि इन्होंने क्या क्या किया है मेरे साथ। लेकिन वहीं जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं उनकी एक खासियत होती है स्मीयर कैंपेन करना। वो एग्जैक्टली. आपके अगेंस्ट ऑलरेडी अपने सारे रिश्तेदारों में, सारे रिलेटिव्स में झूठ सच मिला करके एक नई कहानी बना करके इतना नेगेटिव बोलते हैं, इतना नेगेटिव बोलते हैं। मतलब जिसके साथ अब्यूज हो रहा है वो तो फिर भी उनकी बातें अपनी फैमिली से छुपा रहा है कि भाई आई एम वेरी हैप्पी, मेरे लॉज बड़े अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बड़े अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा छुपा रही है। और ये लोग, ये इतना सपोर्ट कर रही है अपने हस्बैंड को, इतना हर तरह से जो कर सकती है अपनी जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी, उसके बावजूद उसको कानो कान खबर नहीं कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है, उसके अगेंस्ट इतने स्मीयर कैंपेन चल रहे हैं। तो ये जो आपने बोला ना कि उन्होंने क्या 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 उन्होंने अपने रिलेटिव्स को बोला है, तो या करते हैं ये लोग ऐसे। तो मुझे नहीं पता क्या बोला है, लेकिन हाँ। मुझे इतना जरूर पता है कि कुछ तो होगा, क्योंकि हाँ। मुझे वो वो सारा अचानक से, जो हम्म। आपके इर्द गिर्द इतनी बड़ी फैमिली होती है, वो कोई भी नहीं है अभी, हाँ। यू नो हम्म। इज नो बडी देयर एट ऑल. हम्म। और दैट ऑल्सो गोज ऑन टू शो एंड पॉइंट आउट कि हमारी सोसाइटी में कंडीशनिंग कैसे होती है, हम्म। कि इसी ने कुछ किया होगा, इसी वजह से ये हस्बैंड को नहीं संभाल पाई, नहीं कर पाई, इसीलिए हम्म। इसका रिश्ता टूटा. हम्म। हम्म। किसी को ये नहीं पता कि इसने अपने आप को कितना तोड़ा होगा इस रिलेशनशिप को होल्ड करने के लिए. एग्जैक्टली। मतलब मुझे ये सोच के भी मुझे आई एम सरप्राइज दैट पीपल हु वर सो क्लोज टू मी हम्म। did not have not even bothered to call up and ask, Aparna, हम्म। what is wrong? हुआ क्या? हम्म। हम्म। What happened? Nobody has bothered, and that tells me that there must हम्म। have been some smear campaign, as you say. I have हम्म। not bothered to find that out. हम्म। So that is the case of family. I've हम्म। also lost multiple of friends हाँ। because we had common friends. तो कॉमन फ्रेंड्स, या। सिर्फ रिश्तेदारी नहीं छूटे, हाँ। दोस्त भी बहुत सारे दोस्त भी छूटे, छूट जाते हैं। बहुत छूट जाते हैं. हम्म। सोशल सर्कल भी रिड्यूस हो जाता है बिकॉज हाँ। पीपल लुक एट यू के, अरे ये अरे ये म, डिवोर्स्ड, ये डिवोर्स्ड है, हाँ. सो अरे सेपरेटेड है, शी मे देर नॉट इज बी अ गुड सर्टेन वुमेन। स्टिग्मा which is associated with हम्म। it. हम्म। Now how do I deal with it personally is हाँ। I don't give a damn to anything. Literally, because मुझे पता है मैं कितनी मरी हूँ. हम्म। यू जस्ट There वांट was टू time ब्रीथ, जिसको जो there सोचना है was बाहर में जाए। there was a time in my life when I had to get up in the morning. हम्म। It began with crying. It began with, oh my goodness, आज और एक वॉर जोन में जाना है.
हम्म फिर से अपने आप को संभालो, अपने आप को पकड़ के रखो, हम्म ताने सहो, हम्म घर का सारा काम भी करो, हम्म अपना अपना खुद का काम भी करो. हम्म एंड द वर्स्ट पार्ट वाज nobody knows I had no financial support from my husband. हम्म We हम्म, lived in a marriage, so like a live-in relationship, कि तुम्हारा तुम्हारा देखो, मेरा मैं देखूं. हाँ. दिस इज द अनदर फीचर ऑफ नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप कि उसमें हाँ, फाइनेंशियल अब्यूज भी होता है कि मेरा या पैसा मेरा है, तुम्हारा पैसा तुम्हारा है, यू सी, देखो आपको क्या करना है, हाँ लेकिन तुम्हारे से मैं फिर भी फाइनेंशियल गेन मैं ले सकता हूँ, बट यू कैन तो नॉट टेक मतलब, फाइनेंशियल गेन फ्रॉम मी. हाँ, तो मेरा, और इसीलिए तो मुझे, मतलब मुझे ये पता चल चुका था कि अगर मैं नहीं कमाऊंगी, if I don't earn my living for myself, हम्म there would be no support. हम्म And therefore, I had to earn and I had to make sure I'm financially stable. हम्म And in order for me to become financially stable, I had to be emotionally stable. So when हाँ. I look back at all the things that I have lost, हम्म the way I look at it is, अगर किसी को वर्थ नहीं है मेरी, हम्म तो मैं क्यों उनके पीछे भागूं? मतलब why should I go after people who have हम्म either a myopic view or don't understand the reality, or have the, because of whatever reasons, हम्म they cannot understand the reality and the truth. I'm हम्म not going to go behind them and explain to them कि भाई हम्म, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ. I don't need to talk about it, because the एग्जैक्टली. behavior of the people जिनसे मैं जिनको पीछे छोड़कर आई हूँ, उनका behavior itself is loud enough for people to realize it eventually. And even if they don't realize, it doesn't matter. हम्म My life is more important. My happiness is more important. My health is more important. राइट. तो अगर वो सारी चीजें जगह पर है, हाँ. then you automatically collect around you a circle of people who are supportive. हम्म And I am slowly but surely collecting that circle of people around me who are supportive to me, हम्म who understand, हम्म and whoever are abusive, whoever haven't understood, miraculously, magically, पता नहीं क्या है, they're leaving and they're going. हम्म तो शायद ये यूनिवर्स का लॉ है कि आपकी लोनलीनेस हमेशा नहीं रहेगी. There is a एग्जैक्ट. little phase in your life where हाँ. you feel that void in your life, but राइट. that void is required because all that was bad has been taken out and away from you. It हम्म is siphoned out of, हम्म. because I've changed. एंड I'm आई so different रिमेम्बर personality. आप एक अपनी ट्रिप पे भी गए थे, कैसे वो जो हाँ, अकेले मजा किया I था जो went on my आपने. own trip. Yeah. I did a long, हाउ वाज दैट long. एक्सपीरियंस? It was a wonderful experience. I wanted to, that was on my bucket list for आई such a थिंक long दैट time. I टाइम यू wanted to go. ट्रूली एक्सपीरियंस सेल्फ लव, अपने साथ I रह के did. जो आपने इंजॉय करा. आई डिड. मुझे मुझे क्रॉस कंट्री करना था यूएस में, और मैंने वो किया, बकेट लिस्ट पे था मेरा. हम्म तो दैट वाज वंडरफुल. इट वाज लाइक रिकनेक्टिंग माई सेल्फ अगेन, हम्म अंडरस्टैंडिंग कि मुझे क्या चाहिए. तो हम्म अपना वर्थ जब अपने को पता चलता है ना, तो ये हम्म. सारा जो वॉइड है वो अपने आप भर जाता है. वाइट भर जाता है. हाँ, भर जाता है विद गुड पीपल, विद गुड एक्सपीरियंसेस, या. विद पीपल लाइक योर यू, ओन. है ना. Yeah. And people are automatically, because I think I have changed myself. Not I think, I definitely have changed myself. हाँ. So the way people look at me is also different. तो राइट. लोग जब देखते हैं कि अरे इसको, she doesn't seem to be, I think when you carry the guilt in you, you have that vibrations. I have no guilt in me because I know it is not me. I have हम्म done everything I possibly हम्म could. हम्म So my vibrations are different now. So the way people look at me is हम्म. also different. हाँ. एंड And I ये मिथ है, attract लोग genuine people. रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है लोगों. जो मैं Exactly. सोचती है अगर हम डिवोर्स हो गए तो शायद लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है. नहीं, लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं. करते हैं, लोग आपको मतलब अच्छी अच्छी तरह से देखते हैं, ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली. लोगों को समझ में आता है. अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो वाइब्रेशन जाती है दूसरे इंसान तक. ऐसा नहीं है कि कोई आपको अगर आप इस डर की वजह से इतना अब्यूज सह रहे हो कि नहीं लोग क्या कहेंगे, तो नहीं ऐसा नहीं है. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. बिकॉज you come first, and it is not selfish when I say that. मतलब, and your dignity come first. हम्म You should have dignity. हम्म आपकी डिग्निटी अगर कोई छीन रहा है, आप हम्म. सब कुछ छीन जाए तो भी चलता है, लेकिन आपकी जो डिग्निटी है वो छीननी नहीं चाहिए. एग्जैक्टली, डिग्निटी. तो उसको, when that is intact, हाँ you have the respect for yourself, हाँ. and people resonate with हम्म that feelings that you have for yourself, हम्म. uh, and they'll accordingly behave with you. So I don't think loneliness is, डिसअपियर it's हो there जाता for है a little लोनलीनेस amount थोड़े of time टाइम बाद. when you are, हाँ.
but it's not forever, हाँ, for sure. लेकिन अगर इस रिलेशनशिप में रहोगे तो लोनलीनेस कभी नहीं जाने वाला, कभी नहीं, तो हाँ, कभी नहीं नेवर जाएगा, एवर। कभी नहीं जाएगा, लाइक 20 years आपका लोनलीनेस नहीं गया है ना, नहीं नहीं गया। जाता, लोगों का नहीं जाता, लेकिन बाहर निकलने के बाद थोड़े टाइम के लिए आपको लोनलीनेस फील होगा, लेकिन वो डिसअपियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहने वाला है। बिल्कुल। जी। राइट। तो थैंक यू सो मच अपर्णा फॉर दिस मोस्ट एनलाइटनिंग टेस्टिमोनियल। और मैं ओ क्या बोलूं, मुझे मोस्ट आपके साथ खुद इतना मजा आया इस पूरी हीलिंग जर्नी में, क्योंकि यू योरसेल्फ इज सो स्पिरिचुअल, यू आर सच अ स्पिरिचुअल लेडी, और आपके क्वेश्चंस इतने डीप होते थे कि जैसे आपने कहा कि मेरे अंदर ईगो नहीं है, बात ईगो की नहीं है, बात ये है कि मुझे मजा आता है। आई लिटरली एंजॉय जब कोई मुझे क्वेश्चन करता है ना, स्पेशली ऑन लाइफ ऑन स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे तो बहुत 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 मजा आता है, एंड आई कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स नॉन स्टॉप, जी। क्योंकि आई एंजॉय। सो आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच अपर्णा, एंड आई विश यू गुड लक। आप ऐसे ही खुश रहें, हील्ड रहें, और डेफिनेटली आई एम वेटिंग फॉर यू। हम नेक्स्ट लेवल पर भी जाएंगे, और डीप डेप्थ में सॉरी। हील करेंगे, और जी। न्यू न्यू रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे, एंड दैट्स इट। सो इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विथ यू। इट वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल वर्किंग विथ, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं बहुत थेरेपिस्ट, बहुत बड़े डॉक्टर। आई ऑलवेज फेल्ट आई एम वर्किंग विद अ मैं बहुत वंडरफुल। छोटी सी डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ी नहीं। आप यही, दैट इज नॉट इजी। आपने जो कहा वो बहुत, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ साधना, ये कोई भी नहीं कर सकता। तो ये फैक्ट है, इट मैं वॉज सच में फील वंडरफुल। करती हूँ। आई हैव टू लर्न अ लॉट, राइट, आई एम इन दिस जर्नी एंड आई हैव टू लर्न अ लॉट, बट यस, मैं तो यही चाहूंगी आपके जैसे क्लाइंट्स मुझे मिलते रहे, क्योंकि इतना मजा आता है ना आप लोगों के साथ काम करके, और बिल्कुल यू आर डूइंग हमारी अ वेवलेंथ वंडरफुल। मैच करती है एकदम ना। हाँ, हाँ, you want to help, you genuinely want to help, हम्म। और and you keep studying. I think that is what, आप जब कहते हो कि मुझे अच्छा लगता है सवालों का जवाब देना, मुझे अच्छा लगता है because you yourself are evolving, and you not evolving, you want to rather evolve, आपका कंटिन्यूअस, आपका वो यू हैव, वो जो डेप्थ है वो, बहुत सेल्फ स्टडी, बहुत सेल्फ एनालिसिस, बहुत अपने आप पर काम करने के बाद ही कोई इतना कुछ दे सकता है, वरना इट्स नॉट पॉसिबल। Yes, yes. थैंक यू वेरी Parna, I मच। myself have faced toxic relationship for a very, very long time. तो मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत काम आता है ना, हम्म। मुझे लगता है अगर किसी कोई थेरेपिस्ट है जिसने खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करा, तो वो दूसरों को भी नहीं जेन्युइन हेल्प नहीं कर सकता, जी। या कर जी, सकती, they वट don't एवर, understand, है ना। they absolutely don't understand, yeah. हम्म। तो अपर्णा, अ, ये हमारा तो इंटरव्यू कभी एंड ही नहीं होगा। विल कीप I know there टॉकिंग, is so much लेकिन to talk. टाइम हो गया है, हमें यहाँ पे इसको एंड करना होगा। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल enlightening knowledgeable video, your testimonial. Thank you so much and good luck. You're most welcome, most welcome. Bye, thank you. Bye. Bye.